I'm Alicia Singh, volunteering for UDS Foundation. Let's talk only about India and how the journey of menstrual hygiene has been in it. If we talk about the years 80s to 90s, menstruation was considered to be a taboo. People rarely talked about it, though it's a natural process. What did this mean? Inadequate safety measures, awareness, or access to health facilities. Cut to present, a report says among the age group of 15 to 24, considering both rural and urban areas, less number of women use sanitary napkins and most use cloth or similar material and locally prepared napkins. They don't add up to 100%, I know, but this is because there is an obvious overlap amongst these materials being used. But when spoken on an overall basis, approximately 50% of women of age group 15 to 24 use hygienic menstrual methods. Did you know that at any given time, globally 1.8 billion every month, over 800 million women are menstruating each day? Menstruation is a natural process, yet many women face challenges due to lack of access to proper hygiene products and awareness. Poor menstrual hygiene can lead to serious health issues such as urinary tract infections and reproductive tract infections. Studies have shown that improper menstrual care can increase the rate of infections up to 70%. What about the remaining percentage? This line clearly talks about an obvious solution: awareness. I believe spreading awareness is the key, and we have taken a step towards spreading awareness. At Udaya Dubanu Sahasrabha Foundation, we are committed to this. I have with me Dr. Shinjini Pandey, is a consulting gynecologist and gynec laparoscopic surgeon in Mumbai. I want all of you to watch this video, understand the basics and spread it. Now, before we start the lecture, I want to show you one last thing. Something found on the Hindu. Social taboo remains a significant barrier to achieving period equity. This simply can't be the case. I ask all of you to contribute to this noble cause and just end by saying it's only natural. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम ये जो बात कर रहे हैं ये यंग गर्ल्स के लिए एक मैंने स्पेशल टॉक प्रिपेयर किया है, जो कि यंग गर्ल्स को गाइड करने के लिए है कि पीरियड्स के दिनों में अपनी केयर कैसे रखनी है। और इसमें हम थोड़ा सा इस टॉपिक पर टच करेंगे कि पीरियड्स आते क्यों हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, और पीरियड्स के दिनों में आप अपनी केयर अच्छी तरह से कैसे रख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन या पीरियड्स में जो आपको हाइजीन मेंटेन करनी है इसके बारे में है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो गर्ल्स का एक 11-12 की उम्र से लेकर जो 18 की जो एज होती है, ये जो एक पीरियड है इसको इंग्लिश में अडोलेसेंस कहा जाता है, और आप लोग इसको बोलचाल की भाषा में जैसे टीनेज भी कह सकते हैं। तो ये जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है, इसमें जो लड़कियां हैं ये यंग विमेन या मैच्योरिटी की अवस्था के प्रति जाती हैं। दे मूव एंड टर्न इनटू यंग लेडीज एंड यंग विमेन। तो बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं इस दौरान, और इनमें से बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जैसे लड़कियों की हाइट बढ़ती है, उनकी बॉडी में शेप आना चालू होता है, उनके हिप्स ब्रॉड होते हैं, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, और आर्मपिट्स या अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरिया में हेयर दिखता है। इसके साथ साथ गर्ल्स को पीरियड्स भी इसी दौरान पे चालू होते हैं, और ये सारा जो है ये एक 11-12 से लेकर 18 इयर्स का जो एडोलेसेंस का पीरियड है इसमें होता है। 1-2 मिनट लेकर हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये पीरियड्स होते हैं ये क्यों होते हैं, इसके बारे में हम एक जानकारी लेते हैं। तो आप इस जो चित्र है या ये जो फोटोग्राफ आपके सामने है इस पर ध्यान से देखिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये बाहर
एक फीमेल शेप है या लड़की की शेप है और ये इसका निचला भाग है। तो यहाँ पर हर जो गर्ल है या वुमन है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो हमें आगे जाकर प्रेगनेंसी के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 या 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने माउस से जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये होता है हमारा यूट्रस, या हिंदी में आप समझना चाहें तो इसको थैली कहा जाता है या बच्चेदानी कहा जाता है, ठीक है। तो यूट्रस जो है ये एक कमरे की तरह है, एक रूम की तरह है, जिसके अंदर एक इंटरनल एरिया है, एक इंटरनल स्पेस है। और जब कोई लेडी बाद में जाकर प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा जो है ये इसी इंटरनल स्पेस में रहता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अंदर बेबी रहता है, ठीक है। फिर ये जो यूट्रस है ये आपके बॉडी के लोअर पार्ट पे होता है, लोअर सेंटर के पार्ट पे होता है। और यही यूट्रस जहाँ निचला इसका जो भाग होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। और यही जो है नीचे एक टनल जैसी बनती है जिसको वेजाइना कहा जाता है। ये वेजाइना जो है ये टनल या सुरंग जैसी है और ये जाकर ये जो ट्यूब जो है वेजाइना की ये 2 पैरों के बीच में खुल जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा बॉडी के लोअर पार्ट में साइड्स में हर लड़की के पास 2 ओवरीज होती हैं। आप देख रहे हैं माउस से मैं इसको पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो ये जो है एक ओवरी हो गई, ये दूसरी ओवरी हो गई और बीच में एक ट्यूब होती है। अब पूरा फीमेल का जो सिस्टम है या यंग गर्ल्स का जो सिस्टम है जब मैच्योर होता है, यानी कि जब पीरियड्स की साइकिल शुरू होती है, आपको पीरियड्स आना शुरू होंगे, तो ये इसमें क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो ये नेचर का वे है या नेचर का मैकेनिज्म है ये बताने के लिए कि अब ये लड़की प्रेगनेंसी होने के लिए उसकी बॉडी रेडी हो रही है, ठीक है। अब ये पोटेंशियली प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? आपकी ओवरीज में आपके एग्स रहते हैं और हर महीने आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो चाहे राइट ओवरी से चाहे लेफ्ट ओवरी से एग बनाते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन्स फीमेल्स में बनने वाले ओवरीज से बनने वाले स्पेशल जूसेस जैसे होते हैं जो आपको फेमिनिटी देते हैं। फेमिनिटी यानी जो आप एक फीमेल होने का आपका एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए आप फीमेल की तरह दिखती हैं, आपका फेस फीमेल जैसा है, आपकी बॉडी शेप फीमेल जैसी है, आपके इमोशंस फीमेल जैसे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो फेमिनिटी कह लीजिए या हिंदी में स्त्रीत्व कह लीजिए, ये आपको आपके हॉर्मोन्स देते हैं। पुरुषों में, बॉयज में, मेल्स में मेल हॉर्मोन्स होते हैं, वो अलग है। फीमेल्स में फीमेल हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन्स प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं ओवरीज में और हर महीने ये जो हार्मोन्स हैं ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स हर महीने एक स्टेट और एक ऐसी अवस्था जनरेट करते हैं कि हर महीने एक मौका दिया जाता है हर फीमेल को पोटेंशियली प्रेग्नेंट होने का। तो देखते हैं ये काम कैसे होता है। तो हर महीने जो हार्मोन है वो आपकी ओवरीज में से एग्स की ग्रोथ करवाता है और फिर ये जो एग है ये फर्स्ट 14-15 डेज ग्रो करता है और उसके बाद ये रिलीज हो जाता है और रिलीज होकर ये इस बगल में रखी हुई ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। इस टाइम पर जब एग ग्रो कर रहा होता है, हॉर्मोन्स यूट्रस के अंदर एक ब्लड की लेयर को जमा करवा देते हैं। यही जो ब्लड की लेयर है, ये पीरियड्स के ब्लड की लेयर हर महीने जमा हो जाती है और इसका रीज़न ये है कि ये जो एग जो आप ओव्यूलेशन के दिन रिलीज करते हैं, अगर इस दिन किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट होता है और बेबी बनता है, तो जो बेबी है वो फाइनली यूट्रस में जब आता है तो उस महीने के जो इकट्ठा किए हुए मेंस्ट्रुअल ब्लड से बेबी अपना न्यूट्रिशन लेता है, उससे बेबी अटैच होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अगर इस महीने प्रेगनेंसी नहीं हुई
तो यही हॉर्मोन्स जो हैं ये फिर इस मेंस्ट्रुअल ब्लड को जो आपने एक पोटेंशियल प्रेग्नेंट होने के लिए अंदर इकट्ठा किया था, ये अब यूज नहीं होता इस महीने, आपका एग इस महीने यूज नहीं हुआ, तो ये जो ब्लड है ये अगले 14 डेज में यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज के आसपास ये ब्लड नीचे से बॉडी बाहर कर देती है और इसको कहा जाता है कि पीरियड्स आ गए। अब ये जो सारा ब्लड आपने जमा किया था, इकट्ठा किया था, ये इस रास्ते से जो वेजाइना दिख रही है, ये जो टनल की तरह है, जो सुरंग की तरह है, जो कि पैरों के बीच में एक होल करके खुलती है, यहाँ से ये ब्लड आपको बाहर आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस है पीरियड्स का, ये 2 से 7 दिन तक चल सकता है। अगर आप नेक्स्ट फोटो में देखेंगे तो ये मैंने इस फोटो में दिखाने की कोशिश करी है कि बाहर से फीमेल का सिस्टम कैसे दिखता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2 पैर ऐसे हमने स्ट्रेच करके खोले हैं, तो ये एरिया पर आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो ऊपर का एक छोटा सा होल होता है, ये आपके यूरिन का होल है। इसके जस्ट नीचे ये आपकी वेजाइना की होल है, जो अभी मैंने बताई, जहां से पीरियड्स का ब्लड बाहर आता है। और सबसे पीछे मोशन पास करने का यानी कि एनस जिसे कहा जाता है, वो होल होता है। तो पीरियड्स यहाँ से बाहर आते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस एरिया की हाइजीन कैसे मेंटेन करी जाए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और कोई इन्फेक्शन ना हो। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं कि पीरियड्स जनरली शुरू होने की क्या एज होती है। तो ये एज अलग अलग लड़कियों में अलग अलग होती है। 9 to 16 ईयर्स के बीच में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। किसी लड़की को जल्दी शुरू होते हैं, किसी को देर होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंडेंट होता है। कई बारी अगर फैमिली में उसकी मदर को, उसकी दीदी को जल्दी पीरियड्स होने की टेंडेंसी है तो कभी जल्दी कभी लेट, कभी कभी आपकी डाइट, कभी वेट, इन चीज़ों से भी पीरियड्स जल्दी या लेट हो सकते हैं। और जनरली पीरियड्स शुरू होने के 1 या 2 साल पहले ब्रेस्ट की ग्रोथ और बॉडी पार्ट्स में हेयर की ग्रोथ आप नोटिस करेंगे। पीरियड्स कितने दिनों की साइकिल होती है? तो याद रखिए, शुरुआत के दिनों में जब पीरियड्स की साइकिल शुरू होती है तो ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर पीरियड आए, या 28 डेज पर ही आना ज़रूरी है या 30 डेज पर ही आना ज़रूरी है। कई बारी थोड़ा आगे पीछे शुरुआत के 1 या 2 ईयर्स में लड़कियों की पीरियड साइकिल हो सकती है। एक ओवरऑल 21 to 35 डेज का टाइम पीरियड नॉर्मल माना गया है। यदि आपको 21 डेज से बहुत जल्दी पीरियड्स आ जा रहे हैं 15 डेज में, 20 डेज में, तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार दिखा देना चाहिए। या अगर आपको बहुत लेट होकर रेगुलरली लेट ही होता है, पीरियड्स 35-40 डेज के ऊपर ही जाता है, तो भी एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर लें। पीरियड्स की ब्लीडिंग यदि 2 दिन से कम होती हो या 8 दिन से भी ज़्यादा चलते हो तो भी एक बार आपके डॉक्टर को दिखा देना बेटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियड्स में मैं अपनी हाइजीन या अपनी क्लेanलीनेस कैसे मेंटेन करूं। तो याद रखिए कि पीरियड्स के दौरान इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन बॉडी क्लेanलीनेस, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, अगर ये हम ज़्यादा देर तक एक ही पैड पर रखेंगे और अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखेंगे तो फिर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इन्फेक्शन यदि हुआ तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारे यूरिनरी सिस्टम को हार्मफुल हो सकता है, हमारी हेल्थ के लिए ये डैमेजिंग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको यूज़ करना चाहिए पीरियड्स के दिनों में। क्या मैं पैड यूज़ करूं? अगर पैड यूज़ करूं तो कौन सा यूज़ करूं, कि टैम्पोन्स यूज़ करूं, कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करूं। तो देखिए, एक सिंपल रूल है कि शुरुआत के दिनों में इट इज़ बेटर टू यूज़ अ पैड। फिर जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो करती है, अगर आप कंफर्टेबल है मेंस्ट्रुअल कप से या टैम्पोन से, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। रूल्स
सिर्फ सिंपल है कि चाहे कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, पर इनको फ्रीक्वेंटली चेंज करना ज़रूरी है। एक ही पैड घंटों घंटों नहीं पहन लेना है, और चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उस पर ब्लड बहुत देर तक गिरे रहेगा तो फिर ये ब्लड वहाँ जमा हुए इन्फेक्शन आपको कॉज कर सकता है। यदि आप पैड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब पैड आपका सेंटर का हाफ सोख हो जाता है या 2/3 सेंट्रल पोर्शन सोख हो जाता है तो इसे आप बेटर टू चेंज। यदि नहीं भी सोख होता है तो भी दिन में 2 से 3 बार इट इज़ बेटर कि आप आपका पैड चेंज कर दें। जब भी आप पैड चेंज करते हैं इट इज़ बेटर कि आप एक बार प्राइवेट एरिया को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इसके अलावा नॉर्मल केयर आपके प्राइवेट एरिया की कैसे रखनी है, तो याद रखिए प्राइवेट एरिया में नॉर्मल जेंटल सोप और वाटर आपको यूज़ करना है। परफ्यूम वाले सोप्स, बबल बाथ्स, कोई स्पेशल वेजाइनल क्लेंजर्स, इनकी कोई बॉडी को ज़रूरत नहीं होती और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। जो भी आप डेली जेंटल सोप यूज़ करते हैं आपको वही यूज़ करना है। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि ओवर क्लीनिंग नहीं करनी है। बार बार जितनी बार आप यूरिन पास करने जाती हैं हर बार वाटर से धोने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली ड्राई करना उस एरिया को ज़रूरी है। इनफैक्ट ओवर यूज़ ऑफ वाटर या ज़बरदस्ती हर बार आप पानी डालेंगे तो आपको स्किन इन्फेक्शंस या फंगल इन्फेक्शंस और रैशेस होने की चांसेस ज़्यादा होती है। यदि आप पीरियड्स में हैं तो आपको पैड चेंजिंग के टाइम पर तब आप क्लीन कर सकते हैं, बट नॉन पीरियड डेज में आपको आफ्टर पासिंग एवरी यूरिन या आप जब पेशाब कर रहे हैं उसके बाद वाटर से क्लीन करना ज़रूरी नहीं है। मोशन किया है तो क्लीन करना ज़रूरी है, ठीक है। और डेली वंस या ट्वाइस, उससे ज़्यादा आपको प्राइवेट एरिया की क्लीनिंग नहीं करनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग इंटरनली क्लीन करने की कोशिश करते हैं या वेजाइना का जो इनर एरिया है या इनर भाग है उधर वाटर का जेट या वाटर का स्प्रे डालते हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बॉडी को नेचर ने आपके वेजाइना को अपने आप एक क्लेंजिंग मैकेनिज्म दिया है, वहाँ से डिस्चार्ज नॉर्मली बाहर आता ही है तो वेजाइना अपने आप क्लीन होती है। उसको बिल्कुल भी अंदर से कोई पानी या कोई जेट स्प्रे आपको नहीं डालना है, यानी कि डूशेस आपको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये हार्मफुल हो सकते हैं। फिर थोड़ा पैड्स के बारे में जान लेते हैं। यदि आप पैड्स यूज़ कर रहे हैं या पीरियड पैंटीज भी आजकल आ गई हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो इनको टाइम पर डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी ब्लीडिंग है आप 4 to 6 आवर्स में इनको डिस्पोज करिए। यदि आपकी ब्लीडिंग पर्सनली हैवी है तो आप जल्दी भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। याद रखिए पैड्स को टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, टॉयलेट चोक हो जाएगा। इनको डस्टबिन में नीटली डिस्पोज करना होता है। अगर पॉसिबल हो तो बायोडिग्रेडेबल पैड्स यूज़ करिए, क्योंकि नॉर्मल पैड्स में काफ़ी सारा प्लास्टिक होता है तो ये एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं माना जाता है। तो आजकल कॉटन पैड्स या बायोडिग्रेडेबल वीगन पैड्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आपको ये अफोर्ड करवा सकती है तो इनको भी यूज़ किया जा सकता है। और यदि नहीं पॉसिबल है तो नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन्स जैसे मैंने बताया है वैसे यूज़ करिए। हमेशा पैड चेंज वगैरह करने के बाद, वेजाइनल एरिया क्लीन करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से सोप एंड वाटर से धोइए। ये बस डायग्राम यही बताने के लिए है कि डस्टबिन में आपको डिस्पोज करना है, फ्लश आउट नहीं करना है। मेंस्ट्रुअल कप अलग अलग साइजेस में आता है। कैसे यूज़ करना है ये
एक अलग ही टॉक है, आज इस पर हम नहीं बात करेंगे, बट मेंस्ट्रुअल कप अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल कि थोड़ा एज बढ़ने के बाद ये यूज़ करिए, क्योंकि इसमें वजाइना के अंदर आपको कप डालनी पड़ सकती है। हालांकि ये काफ़ी साइजेस में आता है आपके एज और बॉडी साइज के हिसाब से, बट इनिशियली पैड यूज़ करना रेकमेंडेड है। जब आप अपने आप को वॉश करते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बाहर के एरिया को आपको जेंटल सोप एंड वाटर लगाना है। परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स, बॉडी वॉशेस, ये सब कुछ भी नहीं यूज़ करने हैं। माइनर जो है माइनर या माइल्ड सोप्स यूज़ करने हैं। जब आप अपने आप को क्लीन करते हैं तो आगे से पीछे की तरफ पानी डालेंगे, पीछे से आगे की तरफ नहीं डालना है। आप एरो का डायरेक्शन देखिए जो इस डायग्राम में दिखाया है, तो फ्रंट टू बैक क्लीनिंग करनी है, बैक टू फ्रंट नहीं करनी है, नहीं तो इन्फेक्शंस की चांस बढ़ती है। जब भी वाटर यूज़ करते हैं या सोप एंड वाटर यूज़ करते हैं तो ड्राई टॉवल या नैपकिन से आपको पूरा प्राइवेट एरिया अच्छी तरह से क्लीन करना है, गीला ना छोड़ें, नहीं तो इन्फेक्शंस और रैशेस की चांस बढ़ जाती है। इसके बाद जस्ट एक स्मॉल टॉक, पीरियड्स के अराउंड बहुत सारी लड़कियों को कुछ कुछ बॉडी में पीरियड्स आने के पहले और पीरियड्स के दौरान थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ टीनेजर्स को, मे बी 2/3 ऑफ टीनेजर्स को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पीरियड क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, ब्रेस्ट पेन बिफोर द पीरियड्स भी नोटिस होते हैं। एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट सिवियर, जब तक ये बहुत आपको परेशान नहीं कर, मतलब अगर ज़्यादा नहीं है तो इनसे कोई ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। यदि ज़्यादा है तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। क्या करा जा सकता है पीरियड्स के दिनों को इजी करने के लिए? लाइट मील्स लीजिए, सिंपल फूड, होम कुक फूड खाइए। यदि रेस्ट थोड़ा ले सकें तो रेस्ट करिए। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग पीरियड्स के दिनों में करिए। थोड़ा मिनिमल योगा, स्ट्रेचिंग, पोस्चर्स वगैरह भी हेल्प कर सकते हैं। तो और अच्छा हाइड्रेशन आपको पीरियड्स के दिनों में रखना है। आपके डॉक्टर से आपको कब संपर्क करना चाहिए? अगर पीरियड्स में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, यदि पीरियड्स की ब्लीडिंग बिल्कुल अनियमित है, मतलब जिसमें या तो बहुत जल्दी आ रही है या बहुत लेट होकर पीरियड्स आ रहे हैं, या बहुत कम दिन के लिए चलते हो या बहुत ज़्यादा दिन हो रहे हैं, 2 दिन से कम होता हो, 8 दिन से ज़्यादा होता हो, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्शन के चिन्ह या साइंस आपको दिखते हैं, जैसे गंदी स्मेल वाला नीचे से डिस्चार्ज होना, पानी जाना, या आपको डीप येलो कलर का, ग्रीन कलर का वहाँ से डिस्चार्ज जाना, तो ये साइंस ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। प्राइवेट एरिया में अगर आपको खुजली हो रही है या आपको रैशेस जैसे डेवलप हो रहे हैं तो भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अ गर्ल टू वो बीइंग अ वुमन, ये बहुत नेचुरल ट्रांजिशन है। इसका एक्सपीरियंस बहुत इजी और ब्यूटीफुल हो सकता है। अगर आप ये कुछ रूल्स जो मैंने बताए हैं ये फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर योर जर्नी फ्रॉम बीइंग अ गर्ल इनटू अ वुमन विल बी वेरी वेरी इजी। एंड सेल्फ केयर सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ केयर आप रखेंगे तभी आप दूसरों की भी केयर कर सकते हैं। थैंक यू।